Good evening, everyone. Topic of our today's session is exploring investment opportunity with Policy Exchange. For this, we have invited Mr. Ashish Mittal, Policy Exchange. Over to you, sir. Hi, hello everyone. So I can see there are 18 participants as of now. Are we expecting more or should we start? Sir, we can wait for some time. We can wait for 5 minutes, 4 5 minutes. My members are also joining in between. So let them join. And if you can just help me with the profiles, maybe a generic profile of these. So these are the distributors, right? Yes, sir. Our internal team members and distributors. Okay, great. So just wait for 2 3 minutes, and I think I can see the attendees. Okay. So okay. Hi, hello everyone. A very, very good afternoon. Let me take this opportunity to introduce myself. My name is Ashish Mittal. I am the Vice President with the Policy Exchange. I head the entire distribution and sales channel here. So in today's topic, we will be discussing कि क्या क्या हमारे पास products हैं. आई एम श्योर आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होंगे और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में हम इस फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट को जो कि पॉलिसी एक्सचेंज ऑफर करता है उसको कहाँ पे फिट कर सकते हैं. मैं चाहूंगा कि हम इस सेशन को इंटरेक्टिव रखें जिससे कि आई कैन आंसर आई कैन सी हु ऑल आर पार्टिसिपेटिंग एंड जो जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम ले सकें. सो आई स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. And from the Nivesh side, I just missed your name. Who's there? Sir, Anshu. Anshuman, right? Not only Anshu, sir. Anshu. Yes, Okay, sir. Anshu. So everybody's on mute, if I'm not wrong. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So let me start this by showcasing the basic concept of our product. So what are we doing? We are in the business of pre-owned policies. What are the pre-owned policies? Pre-owned policies are the policies which are being owned by somebody else till now. Okay. So typically they are the insurance policies where the people have taken the policy, but they have stopped paying the premiums. Right. And now since they have stopped paying the premiums, there's an opportunity for through a assignment of the policy, there's an opportunity with the policy holder to assign this policy to somebody as an investor. Now this could be an individual and this could be a company. Okay, so let me share this document. Okay, Yes, sir, so we can start. what we are trying to explain is here that I'll take an example how the assignment works, right? So this assignment works on the principle that if somebody who's owning a policy and he has stopped paying the premiums, right? Sorry to interrupt you. Your camera is not visible. Okay. Yes, sir. Now it's visible. Yeah. You can So continue. if somebody has stopped paying the premiums, and I'm taking an example of a typically ULIP product where there's a lock-in of 5 years, right? Now he has paid for 2 years and he has paid 2 lakh rupees in total. I'm taking an example of a policy holder. Now this policy holder has stopped paying premium from third year onwards. So what is the situation? He has paid for 2 years. The total money he has paid is 2 lakh. The fund value is something which is, so the money was in the market, money has grown to two and a Sir, half we lakh. can, so we Right? can continue in both languages if you अच्छा, want. okay. This is what I was trying to do. So अभी उन्होंने 1 लाख करके 2 साल दिया था. टोटल पैसा 2 लाख रुपए हो गया था. उसकी फंड वैल्यू आज की 2.5 लाख रुपए है. Right? And now somehow this person is not being able to pay the premium, the policy holder. He approaches the policy exchange. He lists its policy on our platform. Once he lists the policy, जब वो अपनी policy list करते हैं, we give him an option that because he is getting early liquidity, उनको early exit मिल रहा है policy से, तो वो अपनी policy को किसी discount पे देते हैं, right? The discount is the surrender value, which is always lesser than the premium paid. So for in this example, let's take an example. He agreed to assign this policy in 1.5 lakh rupees. Now,
investor, what is the interest of an investor, and how are we saying that investor will earn 12%, 13%, 14% in this investment without taking any risk on the capital? Because investor need to give 1.5 lakh rupees to the policy holder and 1 lakh rupee as a premium to the insurance company, because this is the due premium. ये है जो प्रीमियम ड्यू था, जो हमें पॉलिसी की इशू करने वाली कंपनी को पे करना है. In total, an investor will pay 2.5 lakh rupees, but the same day, his value will be 3.5. So, Anshu, here I would like to take you as the policy holder and me as an investor, because it will remain an interactive session then, right? So, you received 1.5 lakh and 1 lakh which has been paid to insurance company. The policy gets assigned to me as an investor, and me as an Ashish Mittal, after paying 2.5 lakh rupees, will get 3.5 on day one. And this is an example. I'm just taking this as an example for illustration purpose, right? This is how this keeping the low risk on the capital invested, how we are being able to build the IRR, right? So what is happening now? This is the third year of the policy. The policy will get mature in next 2 years. So Ashish Mittal, me as an investor, need to wait for 2 years to get the money out from the policy. So, and what I'm doing for these 2 years, मैं 2 साल के लिए क्या कर रहा हूं कि वो उस पैसे को हम यूलिप के अंदर ही एक डेट फंड में पार्क कर देते हैं, जो कि फर्दर 8-9% पे ग्रो करता है. तो इन टोटल जो 3.5 लाख रुपीज है, अगर वो 8% से ग्रो करेगा 2 साल तक, तो लगभग उसमें 60-70 हजार रुपए और ऐड हो जाएंगे. और जब ये इस कैलकुलेशन को मैं एक्सेल पे रखता हूं, तो ये कैलकुलेशन कुछ मुझे 12 से 13% का आईआरआर शो करती है फ्रॉम द इन्वेस्टेड अमाउंट टिल द मैच्योरिटी अमाउंट, द लिक्विडेशन अमाउंट, राइट? सो इट्स अ सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन. अब मैं आता हूं डॉक्यूमेंट्स पे, एंड बिफोर कमिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, अंशु, व्हाट इज द वे वी विल टेक द क्वेश्चन? अगर किसी का क्वेश्चन है, there is a chat box and the Q&A section also in the. ओके, मैं चाह रहा था कि जैसे अभी मैंने एक पोर्शन खत्म किया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट. एक पॉलिसी होल्डर है, एक इन्वेस्टर है. पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी कुछ डिस्काउंट में सरेंडर के लिए रेडी होता है, लिस्ट करता है हमारे पास, और उसको इन्वेस्टर एक डिस्काउंटेड रेट पे लेता है, राइट? एंड दिस इज हाउ द आईआरआर गेट्स मैन्युफैक्चर्ड. सो दिस इज फर्स्ट एंड फर्स्ट फेज ऑफ दिस ट्रेनिंग, आई वुड से. तो इसके बाद कोई क्यूएनए ले सकते हैं अभी हम? Yes, sir. If anybody has any question, you can just simply write into the chat box and let them, whenever question pops up, we will take the question. And अब हम आते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पे इसके. ठीक है, ये तो हमने कह दिया कि पॉलिसी होल्डर है वो पॉलिसी दे देगा, और इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टर पॉलिसी को ले लेगा, राइट? पर ये सारा प्रोसेस लीगली कैसे होगा, किस सेक्शन के तहत इसको लीगली डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा, और किस सेक्शन के तहत इन्वेस्टर को नया बॉन्ड इशू होगा, राइट? सो दिस द, यू कैन सी द स्क्रीन, दिस इज द एग्रीमेंट which gets signed between the policy holder and the investor. This gets signed digitally. You can see यहाँ पे digitally किसी ने साइन किया हुआ. ये मेरी एक पॉलिसी जो मैंने साइन कराई है. जब ये साइन हो जाता है एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी में जाके सबमिट होता है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अभी कोई पेमेंट नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है किसी को. ये सिंपली इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट है जो कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके सबमिट हो रही है. इसमें आप देख सकते हैं कि जो साइन होता है, ऑफ कोर्स उसको लीगली बाउंड करने के लिए किस आईपी एड्रेस से हुआ है, किस टाइम हुआ है, किस फॉर्मेट में हुआ है, वो सब कुछ इसमें आ रहा है. एंड दिस इज लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट व्हिच गेट्स साइंड. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जब ये डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल इशू करती है पॉलिसी के लिए, राइट? एंड जब वो अप्रूवल आता है, तो फिर हम एक
पेमेंट रेज कर लेने के लिए इन्वेस्टर से एक इन्वेस्टमेंट लेटर इशू करते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कितना इन्वेस्ट करना है, कितना मिलेगा, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा वापस। राइट? अंशु, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? Yes, sir. ओके, ग्रेट। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है पूरा, तो फिर इन्वेस्टर को उस मेच्योरिटी की डेट तक वेट करना होता है। और आप देख सकते हैं सेम पॉलिसी जिसको मैं दिखा रहा था, उसकी मेच्योरिटी यहां पे आई हुई है। ये पॉलिसी सरेंडर हुई है अपनी ड्यू डेट पे, और इसका पैसा ट्रांसफर होके 652 मिला है टू दी इन्वेस्टर। तो ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसके तहत हम इंश्योर करते हैं कि पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी पहले एप्लीकेशन रिसीव करती है, फिर इन प्रिंसिपल अप्रूव करती है, फिर एक इंडोर्समेंट देती है ऑन दी रिसीविंग ऑन दी पेमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर, और फिर एक बॉन्ड इशू होता है जो उसके घर पे आता है इन्वेस्टर के। और उस देन ही कैन सरेंडर ऑन दी मेच्योरिटी डेट, ही कैन अप्रोच टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड ही कैन सिंपली सरेंडर द पॉलिसी। राइट? अब ये सारी चीजें हैं जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये सेफ्टी, ये जो एसेट क्लास है, हमने बात तो की, चलो आईआरआर आ जाएगा, आईआरआर तो म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में भी आ जाता है, बट रिस्क, जो एक रिस्क का कंपोनेंट है किसी भी एसेट क्लास में, रिस्क का क्लासिफिकेशन होता है। तो रिस्क कितना प्रोमिनेंट है इन द प्री ओन्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, दैट रिस्क इज वेरी सिमिलर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट। जितना बैंक में पैसा रखने में रिस्क है, लगभग उतना ही रिस्क है इसमें, उससे भी कम रिस्क है, बट रिटर्न उससे ज्यादा है। राइट? अंशु, आई होप जिस तरह से मैं बता रहा हूं, जिस तरह से आपके डिस्ट्रीब्यूटर इसको रिसीव कर रहे होंगे, दे आर बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड। Yes, sir. I request all the participants also कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स पे टाइप करके पूछ सकते हैं, और या आप ओपन भी कर सकते मैसेज हो, भी कैन कर यू सकते हैं ओपन दी। जिससे हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। अभी हम Q&A सेशन शुरू कर सकते हैं एक्चुअली, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है ना अंशु, ये थोड़ा इंटरेक्टिव होके ज्यादा समझ में आता है। Sure, sir. कैन यू ओपन दिस फॉर पीपल टू स्पीक अप? Yes, sure, sir. I am allowing all the people. यू कैन अनम्यूट देम सो I दैट, can allow them to unmute themselves. या ओके। हेलो। या ज्योति बताइए। हाँ सर जी, कैन आई नो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओनरशिप एट मेच्योरिटी, लाइक टैक्स लाइबिलिटी एंड अदर थिंग्स? बिल्कुल, बहुत सही सवाल पूछा आपने ज्योति। जैसा कि आपको मैंने दिखाया था इसमें कि ज्यादातर पॉलिसीज इसमें टैक्स फ्री होती हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज, क्योंकि पॉलिसी में टैक्सेशन आया 2021 के बाद। अगर पॉलिसी 2021 के पहले से इश्यूड है तो वो टैक्स फ्री है इन द हैंड ऑफ द इन्वेस्टर, या वो तब तक टैक्स फ्री है जब तक उसका प्रीमियम अमाउंट, एनुअल प्रीमियम अमाउंट 2.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर नहीं निकलता है। तो इस केस में जहां मैंने दिखाया सरेंडर, ये वैल्यू जो आई है 652, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है टू औसफ अहमद जिन्होंने पैसा लगाया था। करेक्ट। तो आप समझे ज्योति जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? टैक्सेशन का जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर पॉलिसी अप्रैल 2021 के बाद इश्यू हुई है, सॉरी फरवरी 1 फेब 2021 के बाद इश्यू हुई है, तो वो टैक्सेबल होगी अगर उसका प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है एनुअल तो। पर गुड क्वेश्चन ज्योति। एनीवन एल्स?
टेन्योर को लेके, टाइप ऑफ पॉलिसीज को लेके। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बीनू जी हाँ सर, बताइए। नमस्ते नमस्कार जी। सर। सर, आज ही मैंने जो है वो निवेश में वो कराया है, प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं। ओके। हमें जानकारी कुछ है नहीं, तो हम चाहते हैं कि जो है हम भी इन्वेस्ट के लिए जो है सीख लें। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है बीनू जी। अभी तक जो मैंने बताया उसमें कुछ समझ में आया आपको? ये बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है। देखिए आपने निवेश को ज्वाइन अब किया होगा तो इनके पास मल्टीपल अ, प्रोडक्ट है। इनके पास म्यूचुअल फंड्स भी है, आई थिंक इंश्योरेंस भी है, सब कुछ है। जी जी। आप कैसे करते हैं अपना काम, मतलब आपके पास कस्टमर्स हैं, कैसे आप अप्रोच करते हैं? सर, मैं LIC से जुड़ा हुआ हूँ ओके। और पोस्ट ऑफिस की एजेंसी ले रखी है, और अब ये लिया है आप यार नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो मैंने भी बताया आपको समझ में आया थोड़ा बहुत कि मैं क्या कहना चाह रहा था? अभी सर 5 मिनट हुआ है जुड़े हैं सर। अच्छा। तो हम्म, आपने कभी असाइनमेंट का नाम सुना है? इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं? जी सर। कैसा होता है इंश्योरेंस, जरा एक बार बताएंगे कैसे प्रीमियम भरना होता है, कैसे होता है? प्रीमियम इंश्योरेंस जो है किसी के ऊपर जो है सर बीमा होता है, अगर कुछ होता है तो उसको कैजुअलिटी होती है तो उसको मिलेगा उसके परिवार को। और प्रीमियम जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ऐसे होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ पॉलिसी ऐसी भी होती है, अगर वो इनकम पॉलिसीज होती है बेसिकली, जिसमें इंश्योरेंस हाँ कवर भी वो, चलता रहता है और इन्वेस्टमेंट भी चलती रहती है साथ साथ। हाँ हाँ, ट्रेडिशनल पॉलिसी है। और जैसे आपके हमारे LIC में यूलिप। निवेश निवेश प्लस है, और इंडेक्स प्लस है। हाँ जी। इस तरह से। हाँ, लेकिन सर उसमें क्या है कि इंडेक्स प्लस जो है उसमें 2,500 से नीचे जमा नहीं कर सकते हैं। और जो निवेश प्लस है वो सिंगल प्रीमियम है, तो उसमें 1.25 लाख से नीचे नहीं जमा हो ये आप सकता है। शायद LIC की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ जी सर। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ हाँ जनरिक, जो पॉलिसी का असाइनमेंट है वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। हाँ जी सर। ठीक है, तो अच्छी जानकारी है आपको, आप अच्छा करेंगे। तो आपसे सीखना चाहते हैं सर कि हम भी अच्छा करें सर। नहीं सर, हम तो आपकी मदद ही करेंगे, हम भी सीखे ही हैं अपने साथ साथ, और बिल्कुल पूरी मदद करेंगे आपकी। अभी तक जो मैंने समझाया आपको, या जब जो हाँ, भी सुना आपने 5 मिनट में, उसमें क्या समझ में आया कुछ आपको? हाँ, आपने शायद अभी भी बिल्कुल रिसेंटली किया है जितना मुझे लग रहा है। हाँ हाँ सर, जैसे हमने अभी एक लोगों से बात किया है, हम्म। तो उन्होंने ये कहा कि जुलाई में हम जो है 7,000 रुपए के हिसाब से SIP कराएंगे। तो और उन्होंने कहा कौन सा इसमें अच्छा ग्रोथ दे रहा है, तो उनको हम क्या बताएं सर। आई थिंक आपका ये क्वेश्चन है वो, इस वाले जो हमने आज का टॉपिक रखा है इसके प्रीव्यू से बाहर का है। आई एम श्योर अंशु जी आपको कनेक्ट कराएंगे विद द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट हाँ, हेड। और दूसरा सर हमें पूछना था कि जो है एक हमारी RD, जैसे पोस्ट ऑफिस की RD होती है, वो मिच्योर हो रही है, उसमें 11 लाख रुपया पार्टी को मिलेगा। तो वो 6 लाख रुपया तो उसी में TD करा देगा, टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में। और वो सोच रहा है कि 4 से 5 लाख रुपया जो है हम SIP में लगा दें। नहीं, तो सही सोच उसके रहे हैं वो, लिए क्या बिल्कुल सही करना, सोच रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में तो क्या इसके लिए इंटरेस्ट क्या मिलता करना है पोस्ट पड़ेगा। ऑफिस में? पोस्ट ऑफिस में सर 6.9 है 1 साल की TD में। 6.9? एक साल, हाँ 1 साल की TD में। और वो भी वो भी टैक्सेबल होता है? नहीं, टैक्सेबल तो नहीं है पोस्ट ऑफिस में। क्यों, कितना, कितने साल का लॉक इन है? उसमें तो सर 21 साल जमा करना है, जैसे 1 साल टाइम डिपॉजिट जो होता है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। तो उन्होंने ये भी बताया था कि हमें जैसे शादी वादी करनी हुई 1-2 साल 3 साल में, तो हमने कहा एक एक साल के लिए जमा कर दो। अगर 1 साल बाद आपको शादी मान लो बढ़ जाती है या नहीं करते हैं, तो 1 साल के लिए फिर बढ़ा देना। तो ठीक इस है। तरह से वो बढ़ा देंगे। इसी तरह इसमें भी जो है 1-2 साल के लिए डाल दें पैसा, इसमें भी कुछ प्रॉफिट हो जाए उन्हें। मैं समझ गया। ठीक है बीनू जी, तो ठीक है। आपको ये अंशु जी मदद करेंगे। क्योंकि हमारे, हाँ जी। आपका जो प्रोडक्ट का क्वेरी है वो इस प्रोडक्ट की क्वेरी, मतलब इसके प्रीव्यू से श्योर बाहर सर, का है। आप अपने रिस्पेक्टिव RM से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको सारी हाँ, चीजें, आशीष, हाँ वो, आशीष सर से। यस सर। अच्छा सर। धन्यवाद सर। सर हम कंटिन्यू कर सकते हैं।
हाँ जी हाँ, और मैं आई वाज जस्ट टेकिंग द क्वेश्चंस अंशु, अगर किसी और के क्वेश्चंस हैं वी कैन टेक देम। ज्योति मैम, आप अपना आपने हैंड रेस किया है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं म्यूट करके। एक्चुअली सर एक और छोटा सा क्वेरी था। बताइए। व्हाट अबाउट लिस्टिंग इसकी, हमें आपने कहा डिफरेंट कंपनीज के हो सकते हैं, तो इसकी लिस्टिंग हमें आपसे मिलेगी? बहुत बढ़िया। सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, मैं वो भी शेयर करता हूं आपके साथ। हमारा एक प्लेटफॉर्म है, द पॉलिसी एक्सचेंज, राइट। द पॉलिसी एक्सचेंज पे आपको, जब आप इसको लॉगिन करेंगे, मैं शेयर भी करता हूं आपके साथ। ये स्क्रीन दिख रही है मेरी अभी, और ये सर। हाँ जी पॉलिसी, सर। राइट। तो जब अगर इसमें हम लॉगिन करते हैं, मतलब मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं अपने लॉगिन से ही करता हूं पहले तो। सिंपल लॉगिन है, ओटीपी बेस्ड। इसमें जैसे ही मैं, ये देखिए, कैन यू सी ऑल द पॉलिसीज? यस सर। ये सारी पॉलिसी आपको यहाँ लिस्टेड मिलेंगी। देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की पॉलिसीज हैं, उसकी आईआरआर हमने निकाल निकाल के लिस्ट किया हुआ है इनको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये पॉलिसी है कि 1.5 लाख रुपए देना है अभी, कोई फ्यूचर में कोई प्रीमियम नहीं है, और 4,88,000 मिलेगा 42 में। ओके, टिल द वेटिंग पीरियड आप रह गए तो इट विल, ओके गॉट इट। देखिए जैसे 153 है नीचे वाला, देखिए आप, ये कितना ल्यूक्रेटिव पॉलिसी है, अभी सिर्फ 1.5 लाख रुपए देना है। पर हाँ, ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म में प्लानिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली। अब इसको 46 में मिलेंगे पैसे, कितने मिलेंगे? 12,71,000। और ये अश्योर्ड है, मतलब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये एक तरह का 20 साल का टैक्स फ्री एफडी है 10.6 पे। ज्योति जी समझ रहे हैं इसको आप? तो ये देखिए, ये सारी लिस्टिंग आपको यहां ऐसे दिखेगी जब हमारी वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करेंगे। किसी और का कुछ क्वेश्चन? Sir, I think we can continue and take the questions at the end. ओके, तो मतलब बेसिकली वी हैव रीच्ड टू द पॉइंट जहां पे मुझे एक इंट्रोडक्शन देना था, जो इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं प्रोडक्ट के बारे में, Yes. राइट। अभी सी, ये जो प्रोडक्ट है ना अंशु, ये प्रोडक्ट इज क्वाइट, कहने के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? एक किसी की पॉलिसी थी, वो पॉलिसी चला नहीं पा रहा था, तो किसी इन्वेस्टर को उसको डिस्काउंट पे दिलवा दिया गया। ये कहने के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट में जो कॉम्प्लिकेशन है वो सिर्फ समझने की है, ये एक लीग से हटके एसेट क्लास है। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग इंटरेक्टिव होके इसको समझना चाहेंगे, मैं उस क्वेश्चंस को लेते हुए आई कैन आंसर द क्वेरीज। Sure, sir. अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में क्वेश्चन अपना टाइप भी कर सकते हैं। और हम हिंदी में भी ले सकते हैं इस चीज को, मतलब अगर किसी को लगता है कि सिर्फ हिंदी में ही समझना है, आई कैन से मेनी पीपल आर कनेक्टेड, लाइक नितिन इज कनेक्टेड, शिवानी इज देयर, शैलेंद्र इज देयर। इफ दे हैव एनी क्वेरीज वी कैन हैव अ स्टेप, एनीथिंग, मतलब एनी क्वेश्चन इज वेलकम, बिकॉज ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हमें टू एंड फ्रो इंटरेक्शन रखना होगा। आई कैन सी राहुल इज देयर।
सो बेसिकली मैं इसको समराइज करता हूं अंशु, टू टर्मिनेट द सेशन. सो दिस इज वन रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज इमर्जिंग इन 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 नाउ डेज. टिल नाउ अभी तक कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था. आई थिंक राहुल कुछ बोलना चाहते हैं. सर ये जो पॉलिसी है हाँ जी. रिटर्न वाली, तो इसमें मतलब सामने वाला बंदा सरेंडर करता है उस टाइम पे ये हम किसी को डिस्काउंट में दे सकते हैं, राइट? सरेंडर नहीं, जब वो पॉलिसी को चला नहीं पा रहा है तब. ओके उनको अर्ली सरेंडर जब हो जाएगा फिर तो खुद ही ले लेगा ना जाके पैसे वो कंपनी से. ओके ओके तो उसके पहले हमें मतलब ये करना है सर? नहीं नहीं नहीं, आपका काम पॉलिसी होल्डर को लाने का नहीं है. ओके आपका काम अपने, आप तो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं ना, अभी तक इन्वेस्टर की हाँ इन्वेस्टमेंट्स हाँ कराते हैं, करेक्ट. बराबर. आप तो अपने इन्वेस्टर के लिए वो टूल्स ढूंढते हैं जिसमें वो ज्यादा रिटर्न मार्क ले सकें. ओके 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 सर. तो ये ज्यादा रिटर्न दिलवाने वाला प्रोडक्ट है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे. ओके सर, थैंक यू. हेलो सर. हाँ जी ज्योति जी. तो ये सेटल्ड ऑलरेडी जो कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हैं, उन्होंने कस्टमर के साथ सेटल किया हुआ है एंड देन इट इज पब्लिश्ड हियर फॉर अस टू. So Jyoti, I'll explain this. I have a platform, the Policy Exchange, correct? राइट. This platform ensures the registration of the policy holder and these policies on the platform. These companies, we are the retention and collecting agent for these companies. We have a proper agreement with these companies. And then these companies give us a data of the policy holder where retention is required. Retention means the people who are not paying premiums. करेक्ट. So, and we check, our first priority is to get the premium from this investor. In case he is not being able to, या तो वो पैसा दे नहीं पा रहा है या पैसा दे नहीं पा रहा है, इन दोनों केसेस में हम ये पॉलिसी लिस्ट करते हैं यहाँ पे. तो कल को अगर सर वो जो फर्स्ट पार्टी है जो जिसने डाला हुआ है वो रेडी हो जाता है 2 साल के बाद, एक्स्ट्रा जो प्रीमियम है उसका भर के, पेनाल्टी भर के, तो फिर उस केस में. अच्छा. सो ये जो असाइनमेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ज्योति आपने. ये जो असाइनमेंट है ये ओनली वन टाइम असाइनमेंट है एंड ये असाइनमेंट रिवर्स नहीं हो सकता है. एक बार अगर असाइनमेंट कर दी पॉलिसी की तो वो पॉलिसी ओनर इन्वेस्टर बन जाएगा. फिर वो वापस से उस पॉलिसी को नहीं ले सकता है, कोई पेनल्टी भर के या कुछ भी भर के नहीं ले सकता है. अच्छा, तो ये पहले उसके साथ क्लियर किया जाता है ना सर? यस, जो यही तो हमारा काम है. हमारा प्लेटफॉर्म ये इंश्योर करता है कि हमने पॉलिसी होल्डर को किस अमाउंट पे जो से अमाउंट मिलेगा, वी हैव मेक हिम एग्री ऑन दैट अमाउंट. जब वो एग्री हो जाते हैं उसके बाद ही पॉलिसी यहां लिस्ट की जाती है. Okay, this is after agreement. Great. Yes, this is after agreement. Great. So it is ready. It cannot be reversed. It cannot be reversed. And plus one more thing, investor just need to click on the invest now. Okay. Okay. Got it, sir. And then the process will start. देखिए इस पॉलिसी में साफ साफ इसमें एक इलस्ट्रेशन भी आता है. ईयर 0 में कितना देना है? 25,000 रुपए देने हैं. 18 साल वाले कितने मिलेंगे? 1,14,000 रुपए मिलेंगे. ये सेम अगर मैं जो पॉलिसी आपको दिखा रहा था, एक जो बहुत अच्छी पॉलिसी थी 41 वाली, 11 लाख वाली, ये देखिए इसमें कितना देना है अभी? 1,87,000 और ये मिलेगा 11,88,000 रुपए. अब डिपेंड करता है कि किस इन्वेस्टर की कितनी लंबी रिक्वायरमेंट है या कितने टाइम तक की रिक्वायरमेंट है. इसमें आपको हर तरह की पॉलिसी मिलेगी. देखिए 34 की पॉलिसी है, 36 की है, 31 की भी है, 41 की भी है, 42 की भी है, 37 की भी है, और कुछ कुछ पॉलिसीज और भी छोटी मिलेंगी आपको, 28 की भी मिलेगी. ये देखिए इसमें क्या करना है, सिंपल 1,26,000 अभी देना है. एक प्रीमियम ड्यू है इस पॉलिसी में 50,000 का, और उसके बाद उसको 28 में 176 वापस मिल जाएंगे. ये एक पॉलिसी है बहुत अच्छी. देखिए आप
अभी देना है सिर्फ 9,72,000 रुपीज, और सिर्फ 6 साल में 16,54,000 रुपए वापस मिल रहे हैं। 16,54,000 रुपीज 31 में। अब समझिए किसी को अपनी एजुकेशन प्लान करनी है, बच्चों की मैरिज प्लान करनी है, कुछ भी प्लान करना है, उसके लिए कितनी अच्छी चीज है जिसमें कोई फ्यूचर प्रीमियम नहीं देना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और वन टाइम एग्जिट है, और ये टैक्स फ्री है सारा, देयर इज नो टैक्स ऑन इट। करेक्ट। तो कोई भी गोल टैक्स नहीं सेटिंग के ऊपर करके दे कैन इन्वेस्ट, एंड यस डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सर। है ना जी। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनली 4 एसेट क्लास मानी जाती हैं, इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। हम यही 3 4 होती हैं जिनमें हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज इमर्जिंग एज अ 5th एसेट क्लास, जहां पे आपके कैपिटल पे भी रिस्क बहुत कम है और आपको रिटर्न भी अच्छे मिल रहे हैं, दोनों ही चीजें हैं। सर इसमें कुछ पे आउट कैसा रहता है, मतलब पार्टनर्स के लिए क्या पे सर आउट ऑप्शन पार्टनर्स है? का वाला पे आउट वो आपको आपके निवेश से आएगा, वो निवेश वाले कंफर्म करेंगे आप। अच्छा। किसी का भी कुछ और क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, और वी कैन कंक्लूड द सेशन। So there is no questions currently. ठीक है। सो अंशु, आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड टू योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, इतने पेशेंस के साथ प्रोडक्ट को सुना। आई एम श्योर ये प्रोडक्ट है, किसी को कोई भी क्वेरी है तो अंशु विल शेयर आर क्रेडेंशियल्स विद यू। हमारे द पॉलिसी एक्सचेंज के अंकित सिंह हैं जो अभी लाइन पे हैं हमारे साथ, जो कि एज अ रिलेशनशिप मैनेजर निवेश को देखते हैं। अंकित, यू कैन जी। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय अंशु, कैसे हैं? बढ़िया सर। अंशु, ये जितने भी लोग हैं मैं इनसे कहना चाहूँगा एक बार प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, एक बार चेक कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म को रीच आउट कीजिए, उसमें लॉगिन करके देखिएगा अपना, आपको पॉलिसीज दिखेंगी, क्योंकि आपको ये सेल करनी है, राइट? गो हेड, गो हेड। जी। तो इन केस अगर कोई भी क्वेरी कंसर्न होता है तो आप मेरे को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या मेल कीजिए। Sure sir. अंशु, आप इनको सबको ना हमारे क्रेडेंशियल्स सर्कुलेट कर दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल। ठीक है। एंड जिसको भी अगर क्वेरी होती है दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस, और दे कैन रीच आउट थ्रू यू और थ्रू बिल्कुल। निवेश टीम। Sure sir. If any query arises, na, they are all the respected participants can connect with their RM and they will जी। help them out for this एक बार part. ना सभी इन्वेस्टर पे रजिस्टर कीजिएगा, क्योंकि अगर जिसको इन्वेस्टमेंट करनी भी है या नहीं भी करनी है, बिकॉज क्योंकि एक बार जर्नी देखेंगे ना तो आप किसी को सजेस्ट कर पाएंगे इजीली। Sure sir. जी। Thank you sir for joining with us and थैंक यू thank you to अंशु। all the participants also for joining with us. इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्दी शेयर कर दी जाएगी। आज की सेशन यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जी। थैंक यू, थैंक थैंक्स यू अंशु। अंशु। थैंक यू सर।